चैतन्यमयी सत्यमयी परामे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परामे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परामे. Let us meditate on the most auspicious form of Savitri, on the light of Supreme, which shall illumine us with the truth. Greetings to Madhumaima and the Supreme Lord Sri Aurobindo. I extend my most cordial welcome to all the devotees and esteemed participants gathered here today. It is with profound reverence and heartfelt gratitude that I inaugurate these proceedings, dedicating today's sacred program to the Mother. We are all deeply aware of the unique spiritual significance that the month of February holds in our spiritual calendar. Throughout this month, we have immersed ourselves in the luminous and mantra-filled vibrations of Savitri, contemplating its divine revelations and transformative power. Yet, today marks an occasion of unparalleled importance, the 21st of February, the sacred anniversary of Mother's birth. One effect to our beloved Mother. May we offer our collective prayers that we remain forever anchored in her divine consciousness, not only today, but for all eternity. I bow in heartfelt gratitude to the Mother for manifesting this sanctified atmosphere, granting us the grace to reflect upon the eternal verses of Savitri. I shall now present an exegetical reading of selected excerpts from Savitri. A flame of radiant happiness she was born, and surely will that flame set earth alight. Now I am going to deliver a ceremonial address to commemorate the anniversary of Mother's birth. All is created by the Supreme Goddess, the Supreme and Original Mahashakti. All proceeds from her. All lives by her. All lives in her, even as she lives in all. All wisdom and knowledge are her wisdom and knowledge. All power is her power. All will and force, her will and force. All action is her action. All movement, her movement. All beings are portions
of her power of existence. Sri Aurobindo. My eternal thanks to her divine presence. We now turn to our first theme. All can be done if the God touch is there. This profound declaration explores the central theme of divine grace as the ultimate catalyst for evolutionary transformation. I now respectfully invite Inna Appa to offer her scholarly insights and critical appraisal regarding the deeper implications of this sublime premise. Salutation, Inna Appa. Vande Mataram. It is a privilege of facilitate this forum. Kindly proceed with your formal presentation and exposition. Inna Appa. Thank you, Appa. Karuna Mahima, Param Prabhu Sri Aurobindoଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ. Vande Mataram, O pranam to all the Appas and Bhais. Today, I have been given a topic which is a line from Savitri. All can be done if the God's touch is there. As a student, what I have understood from my elders, I would like to share it here today. All of us must have had these feelings at some point of time in our lives. We might be in a situation where we feel this is too hard. I cannot do this. I am scared. This is impossible, etc. But now let's imagine something magical. What if I tell you that inside us there is a secret power, a light, and when that light wakes up, impossible things become possible. This is what Sri Aurobindo teaches us in Savitri. All can be done if the God's touch is there. But let us understand, what does this statement mean? Is it some magic trick? Is it? No. It means something more deeper and more stronger. God's touch is not always something that we can see with our eyes. It can be in many forms, diverse forms, which we might not understand at that particular time. But later, as we grow, we understand it. We understand that touch. We understand that power. For example, a sudden courage when we are afraid, a calm feeling when we are angry, a bright idea when we are confused, strength when we want to give up. This kind of help always comes when we least expect it, because God always takes care of us and He always thinks about us much more than we do for ourselves. Let us take a few examples. If a room is dark, very dark, can we push the darkness out? Can we? We'll push the darkness out. We can't, right? Then what can we do? What should we do there? We can switch on the light and darkness immediately disappears in an instant. In the same way, exact same way, when God's light touches our heart, fear and weakness disappears instantly. God's touch here means God's loving grace,
His special presence inside us, which makes even impossible things happen. This is the divine light that touches our soul and gives us real strength and power to make the impossible possible. Now, just imagine in your mind, picture it. Imagine about a tiny little seed, a very tiny seed, which has the immense possibility within it to grow into a large fruit-bearing tree. But in order to become a tree, it has to go through a process, right? It is buried in the soil. Above it is heavy mud and stones, and it is in complete darkness. But does the seed say this? Does the seed say this? Oh, I am in a very difficult position. It is impossible for me to come out. No, it never says that. It always aspires for the sunlight and the rainwater, because their touch helps the seed to slowly grow. And as the light and water touches the seed, it breaks through the darkness and comes out to become a beautiful tree. Here the sunlight and the rain are God's touch, which can make anything possible, anything. Just like the tiny seed, all of us also have immense possibilities within us. But we too have to aspire for the God's touch, which will help us reveal the possibilities within us. Now, let's go into our epics and see examples of warriors who didn't know about their immense possibilities, but how, with God's touch, they could participate in the divine play. In the epic Mahabharata, there was a warrior named Arjun. We all know about Arjun the warrior, who was a great friend, a great devotee of Lord Krishna. He was also a very skilled archer. So, he was chosen by the god for the great divine play of Dharma Pratishtha. But before the great battle, he was afraid. His hands were trembling and his heart was confused. You see, he is such a great warrior, but still he wasn't confident. He felt like he would do something wrong. Something wrong would happen. He said, "I cannot do this." But then suddenly he surrendered to Lord Krishna, and Sri Krishna guided him through the wisdom of Bhagavad Gita. And after listening to it, something changed inside Arjun. The battlefield was the same, the enemies were the same, but he became fearless as he had the God's touch. Sri Aurobindo teaches us something very beautiful. Inside every human being, a divine spark is there. No one is small. No one is weak. We are like a lamp that has not yet been fully lit. When we pray, when we are sincere, and when we try to do the right thing, the lamp grows brighter. Let us all remember one thing. When we try alone, we are limited. But when we try with God, in our heart we become unlimited. There was an instance from ashram school. A student of ashram school had written a letter to one of her friends who was studying outside, not in ashram.
She wrote, I saw something magical. Once during an exam, a boy and a girl both were stuck in a question. They took a moment and sat silently. And after some time, they started writing. Later, when the paper was corrected, they had correctly written the answer. Those kids had surrendered to the mother to guide them in that situation. This instance shows how the God's touch works. Fear can be defeated, sadness can be healed, weakness can become strength, impossible can become possible. So whenever we feel, I cannot do it, we should stop saying that instantly. Very quickly we should stop saying that in our mind. And instead, we should say, with God's help, I will try. This is the meaning of all can be done if God's touch is there. Now I will want to share a prayer. I will want to offer a prayer to the Mother. भागुआ में साते की जगतारे संभावा भागुआ में साते की जगतारे संभावा मनुष्यारा जीवने एव दिव्याविर्भाव मनुष्यारा जीवने एव दिव्याविर्भाव तृषार्त हृदय हेव दिव्य प्रेमर प्रकाश तृषार्त हृदय हेव दिव्य प्रेमर प्रकाश सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श चेतनार आरोहणे हेबु आमे सहयात्री भिंगी देई अवसाद विषादर भय भीति चेतनार आरोहणे हेबु आमे सहयात्री भिंगी देई अवसाद विषादर भय भीति ग्रहण करिबु आमे खुशी रे नव आदर्श ग्रहण करिबु आमे खुशी रे नव आदर्श सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श भागुआ में सते की जगतारे संभव मनुष्यारा जीवने हेब दिव्याविर्भाव आनंद
खेली बसते सारा वातावरण रे अन्यको देखी आमे खुशी हेबु हृदय रे आनंद खेली बसते सारा वातावरण रे अन्यको देखी आमे खुशी हेबु हृदय रे अंतर रे उज्ज्वलता होइबा आम विकास अंतर रे उज्ज्वलता होइबा आम विकास सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श भाबुआ में सते की जगत रे सम्भव मनुष्यर जीवने हेब दिव्य आविर्भाव तृषात हृदय हेब दिव्य प्रेमर प्रकाश सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श सबु किछि सम्भव जदि थाए दिव्य स्पर्श वंदे मातरम to everyone. We extend our sincere gratitude for your invaluable contribution. Your analytical perspective was exceptionally illuminating and masterfully articulated. We are deeply enriched by your thoughtful exposition. Proceeding systematically, we shall now turn to the next theme for contemplation. The next theme subject for deliberation is the seminal line from Savitri. It was the hour before the gods awake. This evocative line symbolizes the state of inconscient prior to the dawn of higher consciousness, the profound stillness that precedes spiritual awakening. I formally invite Arashri Appa to lead us in exploring this significant theme. Arashri Appa. धन्यवाद अप्पा। माँ, तो जैसे हम आज सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही पवित्र दिन है हम सब के लिए। आज हमारे करुणामयी माँ, मधुमयी माँ की शुभ जन्म शतवार्षिक है और उनको मेरा हृदय से अनंत कोटि प्रणाम। उसके साथ यहाँ उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को मेरा हृदय से प्रणाम और हमारे सबके प्रिय पूजनीय आलोक जी को मेरा हृदय से प्रणाम। और मेरे क्षीण बुद्धि से मुझे जो भी माता जी ने मेरे हृदय के थ्रू बताया, मैं उसी को आज थोड़ा सा कहने की कोशिश करूंगी। अगर कोई भी गलती हो तो मैं माता जी के पास क्षमा मांगती हूँ। तो आज जैसे मुझे
टॉपिक मिला है, जो कि सावित्री का, महाकाव्य सावित्री का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन है। इट वॉज द आवर बिफोर गॉड्स अवेक। तो महाकाव्य सावित्री का प्रारंभ जो है वो बुक 1 से होता है, और इसका नाम श्री अरविंदो ने द बुक ऑफ बिगिनिंग्स रखा है। तो बुक ऑफ बिगिनिंग्स में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है 2 मेन कैरेक्टर्स से, सावित्री और अश्वपति से। और यह क्या है, यह सावित्री जो महाकाव्य है, जिसे माताजी ने उस नील आकाश के नीचे सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के टाइटल दिया है, वह क्यों है, वह क्या है, और साथ ही अश्वपति के जो तपस्या के अंतर्गत जिस लक्ष्य के हेतु यह तपस्या हो रही है, उसके साथ भी हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसीलिए इसे बुक ऑफ बिगिनिंग्स भी कहा गया। और इसका जो ओपनिंग सीन है, जो है कैंटो 1 द सिंबल डॉन, ये एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जो हम सब रोज देखते हैं, पर हम नहीं भी देखते हैं, क्योंकि हम आंखों वाले अंधे हैं। वो हम देखते हैं, सच बात है, पर उसे हम अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमारे जो भौतिक आंखें हैं वो बहुत ही सीमित भौतिक चीजों को देखने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कि सूर्य है, चांद है, और जिस भी भौतिक चीज को हम देखते हैं, और अगर वो साइंटिस्ट ने बताया है, अगर वो साइंटिफिक रीजनिंग है उसके पीछे, तो उसी पर हम ट्रस्ट करते हैं। पर हमारे जीवन में ऐसी एक भी स्थिति आती है जिसमें हम सारे जगत को एक सिंबल के रूप में देखते हैं। तो सिंबल क्या है? तो सिंबल एक चीज है जो रिप्रेजेंट करती है किसी अन्य सत्य को। एनीवे, सिंबल एक प्रतीक है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे आप मॉल को जाते हैं, आपके कोई हेलमेट या कुछ भी सामान आप रखते हैं, और टोकन वो शॉपकीपर आपको देता है। उसके बाद आपके शॉपिंग के बाद वो आपके चीजों के बदले में वो टोकन लेता है, और वो आपकी जो चीज वो रखता है वो आपको फिर से दे देता है। तो इसी तरह से तो पहला कैंटो ही वो चीज है जिससे सब कुछ शुरू होता है, जो हम हर दिन देखते हैं पर अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी अस्त व्यस्त रहती है। हम तो उठते ही अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। छोटे बच्चे सुबह उठते हैं, हमें स्कूल जाना है, मम्मी मेरा टिफिन बना दो, वो बना दो, मुझे तैयार कर दो। बड़े लोग, वो मुझे ऑफिस जाना है, मेरा टिफिन बनाओ, मेरा कपड़ा आयरन करो, मुझे जाना है। तो हमारे दिनचर्या में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम वो प्रतीक को भी अनुभव नहीं कर पाते। और वही प्रतीक है हमारे महाकाव्य सावित्री का फर्स्ट लाइन और फर्स्ट चैप्टर, द सिंबल डॉन। रोज उषा काल होता है, और हम उषा काल को एक्चुअली वो किस चीज का प्रतीक है, हम पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक हम समझते हैं इस प्रतीक से कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह एक ना दिन फिर से आती है, और प्रारंभ होता है उसी सुबह से। वो एक्चुअली में एक प्रतीक है जिससे हम जानते हैं कि there's always a new chance, there's always a new chance to start a new life।
तो अब ये कहानी 3-4 धारों पर एक साथ चल रही है। तो हमारा जीवन भी 3-4 धाराओं पर ऐसे चलता है। और वो बाहर एक है कि बाहरी भौतिक घटनाक्रम हम ऐसे देखते हैं कि आज ये होने वाला है, ये कल हुआ था और ये कल होने वाला है। हम ऐसे ही देखते हैं ना हमारे जीवन को। लेकिन उसके पीछे और एक सूत्र चल रहा होता है। इस घटनाक्रम के पीछे हमारी खुद की मानसिक भावनाएं, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, ये सब इसको डिटरमाइन करती है। तो इस बाहरी घटनाक्रम के पीछे एक शक्तियों का पूरा खेल होता है, जिसको हम ना कि जान पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। हम सिर्फ यह सोचते हैं कि ये कोई बाहरी विधाता इसे कंट्रोल कर रहा है, पर एक्चुअल में सूत्रधार हम खुद ही हैं, जो घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं हम उस घटना से रिलेटेड होते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये कोई और कैरी आउट कर रहा है, पर एक्चुअल में हम उसके मूल विधाता है। और एक्चुअल में अगर और कोई भी विधाता उसे कैरी आउट करने की कोशिश करे, तो उसको रचने के लिए वो एक्चुअल मटेरियल हमसे ही मांगता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि एक आर्किटेक्टर एक बड़ा सा घर बनाना चाहता है। वो डिजाइन कर सकता है, कैसा रूम बनेगा, कैसा किचन बनेगा, वो सब प्लान कर सकता है। पर क्या वो ईंट, पत्थर, सीमेंट, रॉड्स, क्या वो खुद बना सकता है? तो उसे कहीं सीमेंट वाले से, कलर वाले से, उसके सबसे रॉ मटेरियल्स लेने पड़ते हैं। तो उसके पीछे वह अपर्ट फोर्सेस का खेल हमारा ही होता है। तो ऐसे ही जिसपे हमारा जीवन चलता है, जिस बात से हम टोटली अनजान होते हैं, और वो और एक धारा है जो हम कभी भी नहीं जानने की ना जान पाते हैं, ना फिर जानने की कोशिश करते हैं। वह आध्यात्मिक धारा, जिसपे सब घटनाक्रम के पीछे एक आध्यात्मिक धारा होती ही होती है, जो अपने को प्रकट करने की चेष्टा हर समय करता रहता है। एक एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे एक चिड़िया एक झाड़ी में फंस गई, और वो झाड़ी खूब ही कंटीली है। तो चिड़िया उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, और इस चेष्टा के दौरान उसके पंख में फड़फड़ा रहे हैं, उसके पंख लहलहान हो रहे हैं, उसको बहुत दर्द हो रहा है। पर अगर वो प्रयास भी नहीं करेगी, तो लास्ट ऑप्शन उसके पास रहेगा कि उसी झाड़ी में वो रह के मर जाए। तो अभी उसको ही ये चुनाव करना है कि उसके अंदर वो रह सकती है, कभी कोई पथिक आया तो देख दिया, कुछ खाना गिर गया कहाँ से, तो उस पर रिलाई कर सकती है, या फिर खुद के प्रयास पर वो खुद ही उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर सकती है। तो आने वाला पथिक और उसे देख ले और उसके ऊपर दया आ जाए उसे, तो ये ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हम बहुत बार होते हैं और हमने बहुत बार देखे हैं। तो यहाँ हमारे 2-3 प्रकार की दृष्टियां काम करते हैं। एक दृष्टि है कि हम देखते हैं कि बेचारी चिड़िया, उसके कितने पंख लहलहान हो चुके हैं, वो कितने प्रयास कर रही है, भगवान उसकी सहायता करे। और एक और दृष्टि है जिसमें हम देखते हैं कि वो चिड़िया प्रयास कर रही है, वाह, वो चिड़िया प्रयास कर रही है, और उस प्रयास के पश्चात वो मुक्त हो गई। तो ये एक आध्यात्मिक ट्रुथ है जो हमारे अंदर से निकलने की हर बार जो चेष्टा करता है, और वो हमारा इनर बीइंग है जो वो अपने पंख को उड़ाना चाहता है, और वो लहलहान होते हैं। पर ये भी उन माता जी की ग्रेस है
It's a mother's grace, it's mother's blessings. Without experiencing the problem, neither we will be empowered, nor will our determination will be so strong, nor we will be able to rise. सावित्री में हम यह देखते हैं कि कई क्षेत्र में कई प्रकार के चीजें प्रभु ने एक साथ डिस्क्राइब किया है। जैसे तीनों चारों नदियां मिलके एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं, वैसे ही श्री अरविंद ने 3-4 बातों को बहुत अच्छे से और सरलता से डिस्क्राइब करते हुए हमारी सावित्री में लिखा है। और यह शैली हम बहुत बार हमारे पुराने का ऋषियों से, उपनिषद और वैदिक ऋषियों के पास भी हमने देखा होगा। And if you look at the Vedic narratives outwardly, they appear as simple tales that the Dasyus hid inside a cave and Indra came and Indra called Rishi Agastya. Agastya broke the rocks with mantras and drank up the ocean, and the Dasyus came out and Indra destroyed him with his thunderbolt. So now outwardly we can know easily that it is a story. But whether it is true or not, people can debate on it, if it is possible or not. But on another level, a person who is engaged in yoga understand that this is actually the inner journey of our own life, जिसमें हम सब हमारे इन अंदर शक्तियों को इस जर्नी में जो हमारी नीचाएं होती हैं उसमें हम हमारी शक्तियों को खोते हैं। तो उस शक्तियों को विनाश करने का और हमारे कॉन्शियसनेस के क्षेत्र को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? तो इन द सेम वे श्री अरबिंदो भी begins from that night, which is the night in which the Satyavan, after the night, in the morning, Satyavan is going to die. So that is why the Canto 1 symbol dawn begins with the line, "It was the hour before gods awake." So now a question arises that what is the time? What is the sacred moment in which even gods have not yet awakened? जो हमारे भारतीय संस्कृत से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि इस मुहूर्त को, जिस मुहूर्त में भगवान भी नहीं जागे होते हैं, उस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें केवल एक ही होता है, ब्राह्मण के अलावा कोई भी नहीं। सब इस समय में अंधकार से ढके होते हैं और इस समय को हम सब मोस्ट सुप्रीम टाइम फॉर मेडिटेशन भी कंसिडर करते हैं और मानते भी बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि इस समय में कोई भी प्रकार की शक्तियां, इट मे बी इविल, इट मे बी डिवाइन, वो शक्तियां जागृत नहीं होती हैं। तो इस मुहूर्त में जब भगवान भी सोए होते हैं तो शक्तियां कैसे जागृत हो सकती है? तो पौराणिक कहानियों और वेदों के अनुसार इन सब कहानियों के पीछे एक डीपर इंडिकेशन होता है। तो यह जो ब्रह्म मुहूर्त है ये इंडिकेट करता है कि there is also a time in which in the creation when even gods are not awake, और यह समय ना ही इसमें अंधकार है, ना टोटल अंधकार है, ना ही टोटल आलोक है, ना ही जन्म है, ना ही मृत्यु। It cannot be defined in normal human words, not by any duality, by any opposing truths. It is indefinable. और श्री अरबिंदो ने उसी रात से सावित्री महाकाव्य को शुरू किया है, जिस रात के बाद सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। तो इस रात को द महारात्रि भी कहा जाता है, द ग्रेट नाइट।
पर हम अभी सोच रहे होंगे कि ये सब कितना इजी है, हमने तो बहुत आसानी से समझ लिया, बाह्य रूप से अगर हम देखें। पर श्री अरबिंदो किसी डीपर चीज को यहाँ समझाने को चाहते हैं हम सबको। वो क्या है, वो क्या सिंबलाइज करना चाहते हैं? तो फिर he wants to symbolize that what does the night symbolize? यह महारात्रि हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ ऐसे मुहूर्त आते हैं जहाँ हम कुछ भी समझ नहीं पाते, कुछ भी क्लियर नहीं होता, कोई भी ऐसा आशा की किरण नहीं दिखाई देती है, इसे साइंटिफिक भाषाओं में साइकोलॉजिकल लाइट भी कहा गया है। तो यह मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जो हम कह सकते हैं कि जिसमें अंधकार की शक्तियां खूब ही पावरफुल हो जाती हैं, और उस चीज को हमारे जीवन में हम कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा हम सबने। और गीता भी हमको कहती है कि हम दिन में एक प्रकार सोचते हैं और रात में सोने के वक्त हम जब सो रहे होते हैं या फिर बस बैठे होते हैं रात में, तब और एक प्रकार सोचते हैं, क्योंकि इस समय में सर्टेन फोर्सेस वो जागृत हो जाती हैं। एंड ऑन द कॉस्मिक लेवल this is the great night into which the civilization periodically plunge, human civilization disappear, and it is the time of transition between ages, often preceded by dissolution. In that dissolution, there is no direction, no sun, no hope, nothing. The entire creation slowly sinks into a deep abyss of darkness, into a step of profound sleep. So, let's do the task for which we all have been given our life, by minding the guidelines of Savitri, through which Sri Aurobindo and Sri Ma is trying to guide us, to raise the world to God in deathless night, and to bring God down to the earth we came, to change the earthly life to life divine. Ma. Victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother. Ma. Appa, I wish to convey my deepest gratitude for your discerning reflection. Your exposition was profoundly insightful and provided valuable illumination. Please accept my sincerest thanks. We now proceed to the next discussion on Savitri, the goddess of the supreme truth. Present among us is a devoted child of the Divine Mother, Dr. Alok Pandey, a distinguished psychiatrist and retired Indian Air Force Wing Commander. Dr. Alok Dada is a preeminent exponent of integral yoga. He synthesizes modern medical science with the spiritual evolutionary vision of Sri Aurobindo and the Mother. As a prolific author and editor, he has dedicated his life to advancing a new paradigm of holistic healing and the psychological transformation of consciousness. Dada, I extend to you my most respectful greetings and a heartfelt welcome as we continue this sacred program, Vande Mataram. I now formally invite you to share your enlightened perspective and profound insights on this theme. Dada, I request you to keep your discussion in Hindi.
जय माँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ ये? यस दादा। हेलो, ओके, ठीक है, थैंक यू। जय माँ। वैसे तो आज का जो दिन है सीमा के जन्म का दिन, ये दिन एकदम शांत रह के अपने ही अंदर नीरवता में उतरने का दिन है, क्योंकि सीमा अनंत हैं और कितना भी हम लोग उनके विषय में बात करें, पढ़ें, समझने की चेष्टा करें, सब कुछ करने के बाद भी हम लोगों की वो अवस्था होती है जो एक बार एक मछली जो नदी से अचानक समुद्र में आ गई, तो उसने उस बड़ी मछली से पूछा कि समुद्र क्या है। तो बड़ी मछली ने उत्तर दिया, समुद्र ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, बाएं भी है, दाएं भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। लेकिन फिर भी अगर मुझे पूछोगे कि समुद्र क्या है, तो ये मैं नहीं बता सकूंगा, नहीं बता सकूंगी। तो ऐसा ही कुछ है जब हम लोग दिव्य जननी, डिवाइन मदर की बात करते हैं। सुप्रीम मदर, परमा माँ मन की परिधि से बाहर है, और इसीलिए चूंकि भगवान मन की परिधि से बाहर हैं, उनका कृत्य हमें नहीं समझ आता। ठीक वैसे जैसे एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता या अपने शिक्षक, अभिभावक उनकी बातें या उनकी जो वो जो कर रहे हैं उसके पीछे उनका संकल्प, उनकी मंशा, उनकी इच्छा नहीं समझ आती है। उसको समझने का एक ही उपाय है कि बच्चा बड़ा हो जाए, और या फिर वो कोई और तरीके से वो अपने माता पिता की मंशा को, उसके पीछे जो संकल्प है उसको समझ जाए। एक बार वो उसको समझ जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे, रात के पीछे क्या संकल्प है। रात को हम दोनों तरह से देख सकते हैं। हम सबके जीवन में रात आती है कि अरे ये एक बड़ी भयानक सी अवस्था कैसे आ गई, क्यों आ गई, क्या बुरा हुआ, इससे हम कैसे बाहर निकलें। लेकिन हम रात को ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे सारे पास्ट एक प्रकार से सो गया है, और अब हमको एक नया अवसर मिलता है, एक नया जीवन लाने का, एक नए ढंग से सोचने का। रोज सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हम ये एक नवीन सोच लेकर उठ सकते हैं, एक संभावना है। ये और बात है कि अधिकांश लोग पुराने को ही रिपीट करते जाते हैं। तो सावित्री की कहानी भी ऐसी ही कहानी है, जब स्वयं परमा माँ, जो वर्णन के परे है, समझ के परे है, वो मनुष्य के अवतार के रूप में आती हैं। क्या दिखाने को? यह दिखाने को कि हम अपना जीवन एक नए ढंग से कैसे जी सकते हैं। हम लोग भयभीत होकर रहते हैं, हर प्रकार के भय, जिसमें सबसे बड़ा भय है मृत्यु। और मृत्यु भी कई प्रकार की है। एक है भौतिक मृत्यु है, और एक मृत्यु ऐसी है कि हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी मृत्यु तुल्य जीवन है। मृत्यु तुल्य जीवन मतलब हम उसी अज्ञान में जी रहे हैं जिसमें हमने जन्म लिया। तो मृत्यु का यहाँ पे बहुत सारे अर्थ हैं। भौतिक मृत्यु भी अर्थ है, लेकिन भौतिक मृत्यु के पीछे यानी जितनी भी शक्तियां हैं जो हमको अज्ञान में बांध करके रखती हैं, वे सारी जो हमको हमारे ही स्वरूप से अपरिचित रखती हैं, वो जो हमें ये जानने नहीं देती कि हम डिवाइन मदर के संतान हैं, जो हमको बार बार केवल एक सीमित पहचान में बांध के रखती हैं, उन सबसे मुक्ति, और उस मुक्ति के द्वारा हम स्वयं को पहचानते हैं। और जितना अधिक हम स्वयं को जानने लगते हैं, जब हम ये जान जाते हैं कि वास्तव में हम तो डिवाइन मदर की ही संतान हैं, तो हमारा जीवन को देखने की दृष्टि भी बदलती है, और जीवन से जीवन की समस्याओं से, इन सब से जूझने की शक्ति भी अलग हो जाती है। फिर हमको समस्याएं नहीं लगती, हमारी ग्रोथ का एक उपाय लगता है, एक माध्यम। जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो परीक्षाएं होती हैं और पढ़ना पड़ता है उसको, तो वो इन परीक्षाओं को देख सकता है कि
अरे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्यों है, क्या है, या वो उसको ऐसे देख सकता है कि इस परीक्षा से जब मैं बाहर निकलूंगा इसमें मेहनत करके तो एक कदम आगे जाऊंगा। तो सावित्री से भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि डिवाइन मदर जो सुप्रीम है, हम सबकी समझ के परे हैं। सुप्रीम का मतलब है कि वो जो सभी प्रकार के बंधनों से भी परे हैं और उन्हीं से चूंकि सब कुछ निकला है, इन बंधनों में भी इंटरवीन करने का, हस्तक्षेप करने का सबसे अधिक यदि कोई शक्ति है संसार में तो उन्हीं की है। तो दोनों तरह से हम देख सकते हैं। ट्रांसेंडेंट मदर जो इस सारी सृष्टि के परे हैं, जिनको मन की कोई भी गति नहीं समझ सकती, किसी प्रकार से हम नहीं जान सकते। और हम वैसे भी देख सकते हैं कि यही डिवाइन मदर पूरे विश्व में सभी शक्तियों की साम्राज्ञी हैं, सम्राट हैं, और सारी शक्तियां वास्तव में अल्टीमेटली अपने मूल ओरिजिन में उन्हीं पे जाती हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करती हैं। और ये जो सारा अरेंजमेंट है इस संसार का, जिसमें हम लोग सुख दुख अच्छा बुरा ये सब देखते हैं, ये वास्तव में उसके पीछे उनकी एक ज्ञान है जिसको विजडम कहा गया है, प्रज्ञा कहा गया है, वो ऑपरेट करती है। तो अगर हम उस प्रयोजन को जान जाएंगे तो संसार की किसी भी बात से, किसी भी घटना से हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम ये बात जान जाएंगे कि ये क्यों है। तो डिवाइन मदर जब भी उन्होंने कई बार यही समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम लोग इस कठिन जीवन से कैसे जीवन बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम ना केवल बाहर आ सकते हैं बल्कि ग्रो कर सकते हैं, तो इसी के लिए उन्होंने ये मानव रूप धारण करके, क्योंकि अगर वो केवल वहां से किसी के माध्यम से बोल देंगी तो एक अलग बात रहेगी, लेकिन जब वो उस कष्ट को अपने ऊपर लेकर के दिखाएंगी कि जीवन को कैसे जिया जाता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य कैसे इसमें से भी अमृत तत्व की खोज कर सकता है, तब हम उस उदाहरण को अपने सामने लेकर के आगे बढ़ेंगे। उससे हमको प्रेरणा भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, उत्साह भी मिलेगा। तो यही मूल रूप से कहानी है सावित्री की। डिवाइन मदर का अवतार है। किस डिवाइन मदर का? वो जो परमोच्च शक्ति है, परमा माँ है, जिनके बारे में मन नहीं जानता। अब वह जब जन्म लेती हैं मनुष्यों के बीच में, तो वो हम सबको बताती हैं कि जीवन को कैसे जीना है। पहले तो ये हमारा परिचय होता है डिवाइन मदर से कि वो जब परमा माँ जन्म लेती हैं, तो सावित्री में ये दो नैरेटिव चलते हैं एक साथ। कई नैरेटिव हैं, जैसा बड़ी सुंदर बात सुनी हम लोगों ने, पर एक है डिवाइन मदर के बचपन से लेकर उनकी पूरी बड़े होने की कहानी, सत्यवान से उनके विवाह, चयन और विवाह की कहानी, और विवाह के बाद जो प्रोफेसी है नारद की कि इसकी मृत्यु होने वाली 1 साल बाद, उसकी कहानी। फिर वो मृत्यु से, सत्यवान की मृत्यु, और वहां पर जाकर के वापस सत्यवान को लाना, और फिर दोनों का वापस आना। ये एक बाहर की कहानी इसमें चलती है। सावित्री के जन्म की भी कहानी की कैसे अशुपति ने उनकी प्रार्थना की, अभिप्सा की और एक वरदान के रूप में मांगा। और साथ में इसमें कहानी चलती है सावित्री की ह्यूमन पर्सनालिटी की। तो जगह जगह हम देखते हैं कि जीवन की जो भी चीजें हैं, सावित्री किस तरह से व्यवहार करती थी। जैसे बुक 1 कैंटो 2 में आता है द इशू, जिसमें बड़ा सुंदर पैसेज है कि माँ के अंदर कैसा प्रेम था, उनके जीवन, उनका माइंड कैसा रहता था, ए सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी, किसी प्रकार की दुर्भावना उनके अंदर नहीं आती थी। कैसे ए वाइट सेल्फ गिविंग वाज अ नेटिव एक्ट, उनके जीवन में उनको देना ही आता था। वो ना कोई चीज मांगती हैं, बल्कि जो कुछ भी है उसको वो देती हैं, और उनके पास जाने से सबको एक सुरक्षा का भाव मिलता था। ज्ञान उनके अंदर स्वतः स्फूर्त था। तो ये सब कुछ, और एक ऐसी शक्ति जो निर्भय होकर के मृत्यु से भी भयभीत नहीं होती है और मृत्यु को भी जीतने का सामर्थ्य रखती है। तो जब हम ये बातें पढ़ते हैं, खासकर सावित्री, चूंकि इसकी बात चल रही है, तो हमारे अंदर भी प्रेरणा आती है जब हम ये चीज लिविंग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे आज सीमा का जन्मदिन है, तो वो तो बहुत सुंदर बात है कि ये माँ का जन्म है और हम सब जाते हैं, अपने अपने ढंग से इसको मनाते हैं। लेकिन अगर हम डिवाइन मदर के जन्म पे, उनके जीवन पे अगर एक दृष्टि डालें, तो कैसे वो 7 साल की आयु में जब कोई 15 साल का लड़का कुछ बदमाशी कर रहा है, तो किस तरह से उन्होंने उसको अपने हाथों से उठाकर, वो कौन सी शक्ति है, कौन सा सामर्थ्य है, उसको नीचे गिरा दिया। कैसे जब लोग उनके पास आते थे कोई भी समस्या का समाधान ढूंढने, तो माँ एक ऐसा समाधान देती थी जो
लॉजिकल माइंड से वो नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए माँ को स्फिंक्स भी कहा जाता था। क्योंकि स्फिंक्स कौन है? वो रिडल पूछती है और उस रिडल का जो उत्तर है वो रिडल के अंदर ही होता है, और उस समस्या का समाधान, सबसे समुचित समाधान, सबसे उत्तम समाधान वो स्फिंक्स देती है। तो उसी प्रकार से जब हम माँ के जीवन का परिचय पाते हैं, कैसे माँ, उनके पास प्रॉपर वस्त्र नहीं थे, बहुत कम वस्त्र थे, एक जोड़ी जूता जिससे वो पूरे जीवन चला रही हैं, कैसे उन्होंने उसको अलग अलग रंग से रंग करके उन्होंने एक जैसे मानो नवीन जूता है, तो ये सब करते हुए कैसे वो बड़ी होती हैं, पेंटिंग करती हैं इत्यादि, ये सब हम लोग पढ़ते हैं माँ के जीवन में। तो परमा माँ तो है, लेकिन परमा माँ इज अल्टीमेट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ये तो एक बात है और वो बड़ी सुंदर बात है। हम सब ये जानना बहुत आवश्यक है, इस संसार में अल्टीमेट पावर डिवाइन पावर है। अल्टीमेट पावर असुर की शक्ति नहीं है, अल्टीमेट पावर ईगो की शक्ति नहीं है, अल्टीमेट पावर किसी राजा की, मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की नहीं है, अल्टीमेट पावर डिवाइन पावर है। तो ये जानना कि एक सुप्रीम मदर है जो इन सबकी जननी नहीं है, सबका कंट्रोल उनके हाथ में है और वो गवर्न करती हैं, उनकी अनेकों अनेकों शक्तियां हैं जो इस संसार में कार्य करती हैं, वो तो एक बात है जो हमारे शास्त्रों में हम लोगों को मिलती है, कई जगहों पर मिलती है। जैसे दुर्गा हैं, वो एक प्रकार के असुर से लड़ती हैं और जीतती हैं। माँ लक्ष्मी है, जहाँ पर अज्ञान और क्रूडनेस, जिसके कारण मनुष्य पाप वृत्ति में गिरता है, तो उसकी जगह वो सौंदर्य का बोध लाती हैं, सामंजस्य की चाह लाती हैं। जहाँ झगड़े हो रहे हैं ये सब, तो उनके अंदर वो सामंजस्य का भाव लाती हैं। माँ सरस्वती जो चीजों के एक एक डिटेल में जाती हैं, सारी जो हम देखते हैं कि भौतिक चीजें जो बनती हैं, वस्तुएं बनती हैं, गढ़ी जाती हैं, तो वो सब महा सरस्वती का, और वो ज्ञान जो स्वतः स्फूर्त इस संसार में नई संभावनाएं प्रकट करता है। तो वो तो एक एस्पेक्ट है कि वो डिवाइन मदर के वो एस्पेक्ट हैं जिनकी हमारे शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, भक्तों ने उनकी चर्चा की है, और इस पर पुराण है, भागवत है, जिसके अंदर डिवाइन मदर की जो अपने सुप्रीम एस्पेक्ट में है या विश्व जननी के रूप में है, उसकी बात है। लेकिन सावित्री में जो खास बात है, और वो श्रीमान श्री अरविंद के जीवन से लगी हुई आती है, कि जब हम पढ़ते हैं इन देवताओं का, इन देवियों का या परमा माँ का भी वर्णन, तो हमारे अंदर एक भाव आता है कि ठीक है, हमारे लिए सहायता मौजूद है, और जब भी हम तकलीफ में होते हैं तो आर्थ की तरह उनकी प्रार्थना करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है जो भारतवर्ष में, पूरे विश्व में है, भारतवर्ष में ये बहुत प्रधान रूप में रहा है कि जब हम कोई मुसीबत में होते हैं तो हम डिवाइन मदर को प्रे करते हैं, या किसी भी इष्ट को प्रे करते हैं, या किसी प्रकार की तपस्या करते हैं, वो वरदान के रूप में देती है। लेकिन एक और एस्पेक्ट है कि ये तो हुई कि जब हमको कोई तकलीफ है, हमारी मुसीबत है, लेकिन हम दैनिक जीवन कैसे जिए, उसमें हमारा क्या यार्डस्टिक होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं किताबों में, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीवन में, जो नॉर्मल कोर्स में चलती हैं, आती हैं, कई सारे चैलेंजेस आते हैं। तो वहां पर जब हम सावित्री के जीवन को देखते हैं, और भी अधिक अगर हम कहें तो सावित्री डिवाइन मदर की ही वास्तव में बायोग्राफी है, तो अगर हम उनके जीवन को पढ़े तब हमको पता चलता है, और वो बड़ी अद्भुत बात है। फॉर एग्जाम्पल कि माँ पेड़ पौधे वृक्षों के साथ कैसे संबंध बनाती थी, माँ पशुओं के साथ कैसे संबंध बनाती थी, माँ जड़ तत्व के साथ कैसे संबंध बनाती थी, माँ ईंट पत्थर के साथ कैसे संबंध जोड़ती थी, माँ मनुष्यों के साथ जो भिन्न भिन्न वैरायटी के उनके साथ कैसे संबंध जोड़ती थी, माँ के अपने प्रकृति में प्रेम का क्या रूप है। जब हम ये चीज देखते हैं, कोई हमारे जैसा ही हाड़ मास में आकर के हमें दिखाता है चल करके जीवन में, एक दो कहानी ले लें, माँ से पशु, यहाँ तक कि वो अब आजकल हम लोग इकोलॉजी और इसकी बात करते हैं, लेकिन माँ ने कैसे वृक्षों के प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिए, इवन नाग देवता के प्रति, सर्पों के प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिए, पशुओं के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, सब चीजें वो अपने जीवन में दिखाया है उन्होंने। तो मुख्य चीज हमारे लिए जो ये है कि हम जब सावित्री को पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। एक तो है कि उनकी आंतरिक साधना, तो आंतरिक साधना तो है, सब हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अगर हम केवल उनके बाहरी जीवन को भी पढ़ें
जो जगह जगह आता है। पूरी जो बुक 5 के बाद पूरा उनका जन्म, पेड़ पौधों के साथ संबंध, कैसे वो परिचय प्राप्त करती हैं, कैसे उनके अंदर सीखने की लगन है। बहुत अद्भुत हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे डिवाइन मदर कोई भी उनके हाथ में कोई चीज पकड़ा दो। एक छोटी सी घटना है माँ के जीवन की कि जब उनके भाई ने उनसे कुछ कहा कि क्या ये समस्या है, क्या तुम इसको हल कर सकती हो, तो उस समय तक वास्तव में माँ का कोई इंटरेस्ट नहीं आता था इन चीजों में। एक छोटा सा उसका बैकग्राउंड ये है कि 7 साल की उम्र तक माँ कोई किताब वगैरह पढ़ने में कोई बाहर से नहीं पढ़ती थी। तो एक दिन उनके भाई ने उनसे एक प्रकार से चैलेंज करते हुए, माँ ने उनसे कहा कि ये तुम क्या पढ़ रहे हो, मुझे दिखाओ। तो भाई ने हंसते हुए, मजाक करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम पढ़ना सीखो, फिर तुम पढ़ना। माँ ने 2 दिन के अंदर सब कुछ सीख लिया पढ़ना। और वहीं एक घटना है जहां एक बार जब उनके माता पिता गए हुए थे तो कबर्ड के काफी ऊपर कोई चीज थी जो बच्चों के लिए अलाउड नहीं थी उतारना या देखना, जो भी चीज थी। तो जब माता पिता उनके बाहर गए थे तो उनके भाई ने माँ को कहा कि मैं इसको ऊपर से उतारता हूँ, तो मुझे उठाओ, थोड़ा सा सहारा दो। तो माँ ने उसमें हेल्प किया उसको लाने के लिए। लेकिन उसके बाद माँ को ये प्रतीत हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ एक जगह बताती हैं कि कैसे, हालांकि कोई नहीं देख रहा है, उस समय कोई भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा भाव आया कि नहीं, ये चीज जो है ये गलत है। उनके हृदय में इस प्रकार की टीस उठी कि नहीं। और माँ बताती हैं कि एक साइकिक फीलिंग होती है हम सबके अंदर, जो हमको ये नहीं कि बाहर से क्या चीज कही जा रही है, नहीं कही जा रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस कहानी में ये थी कि किस बात से माँ को ये भाव हुआ कि यह गलत है। ये नहीं कि उसने वो चीज उतारी और देखना चाहा या उससे खेलना। उसने यह बात कही माँ को कि अगर माता पिता पूछें तो तुम मौन रह जाना या उनसे कुछ कहना नहीं। अब यह जो बात थी ये झूठ थी। चीज उतारना, उसके साथ खेलना या देखना, समझना, ये एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन झूठ कहना, और माँ कहती है पहली बार मैंने जीवन में मुझे परिचय हुआ कि झूठ क्या होता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, सावित्री में भी इसका वर्णन आता है कि मूव्ड बाय ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट, कोई भी ऐसी चीज उनके जीवन में ऐसी नहीं थी जो सत्य से विमुख होकर के हो। जो भी वो कहती हैं, जो भी वो जीवन में करती हैं, वो सत्य से जुड़ के करना। ये बहुत कठिन होता है क्योंकि हम लोग आमतौर पर जानते भी नहीं कि सत्य क्या होता है। हम तो ये सोचते हैं कि मेरे दिमाग में जो विचार आ गया वो सही है, या जो मुझे लॉजिक तो हम सब देते हैं, हर चीज को जस्टिफाई करते हैं कि मेरे पास अगर किसी चीज का जस्टिफिकेशन है तो वो सच है। या फिर हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जो हमारी आंखों से देखा, कानों से सुना सच है। लेकिन सच बहुत गहराई में होता है। माँ एक जगह लिखती हैं कि सच हमारी इतनी गहराई में छिपा होता है कि हम स्वयं नहीं जानते। और अधिकांश मनुष्य उस सच से परिचित भी नहीं है। वो एक झूठ की दुनिया में रहते हैं, उसी को सच, खुद भी उसमें विश्वास करने लगते हैं और संसार के लिए भी वो सच के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अगर वो वास्तव में मनुष्य जाग जाएंगे उनके अंदर जो सच है, तो उनके जीवन में भी एक उथल पुथल आएगी और सारे संसार में भी उनसे जो परिचित हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी उथल पुथल आएगी। तो हम सब इसके कारण सत्य बोलने से बहुत, या उसको देखने से भी बहुत घबराते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ इसी से होता है। तो अर्जुन का सच क्या है कि ये सब मेरे बड़े हैं, मेरे पूजनीय हैं, इन सब का मुझे आदर करना चाहिए। और अगर ये मुझसे राज्य ले जाना चाह रहे हैं तो ले जाने दो, मेरे बड़े हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे भाई हैं, और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनको चोट पहुंचे। ये एक अच्छी सोच है, लेकिन ये एक सीमित सोच है, ये सत्य नहीं है। और वहां पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कैसे परिचय कराते हैं कि अर्जुन, ये मिथ्या है, ये मिथ्याचार है, तू तो ये जानता भी नहीं। सच तो ये है कि ये ना उनका है ना तेरा है, ये मेरा है, भगवान का है। और उसको भगवान के लिए क्लेम करना, यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। हमारे पास भी जो चीजें हैं, हम चोर वृत्ति से उनका उपयोग करते हैं। कैसे उन चीजों को हम भगवान के लिए उपयोग करें, इसको कहते हैं भगवान के लिए क्लेम करना। और यही चीज हम जब सावित्री में देखते हैं कि जब वो सत्यवान की सोल को वापस लेने आती हैं,
तो मृत्यु यही कहती है, यम यही कहते हैं उनको कि तुम क्यों लेना चाह रही हो, तो जीवन का नियम है, जो जीवन में जन्म लेता है वो मरता है। तुमको अटैचमेंट है इसलिए तुम चाह रही हो कि तुम्हारा मृत वापस आ जाए, लेकिन ऐसा तो कोई नियम नहीं है। हाँ ठीक है, तुमको शायद उसके साथ रहने से, क्योंकि एक ही वर्ष हुआ है, तुम्हें बच्चे वगैरह होंगे, तुम्हारा घर परिवार चलेगा, इसलिए तुम चाह रही हो। और फिर वो कहता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें खूब सारी संतान, बाहरी वैभव, ये सब कुछ देता हूं, लेकिन सत्यवान की सोल तो अब चली गई है, अब इसको वापस नहीं ला सकती हो। उस समय सावित्री बताती हैं कि उस संबंध का आधार और उस संबंध का सत्य क्या है, और वहां वो बताती हैं कि मैं अपनी कोई भावनात्मक भूख के लिए या मैं अपने कोई बाहरी जीवन को चलाने के लिए, इन चीजों के लिए मैं सत्यवान को नहीं चाहती हूँ। मैं तो सत्यवान को मांग रही हूँ इन वन कॉमन वर्क फॉर विच आवर लाइव्स आर बॉर्न, टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट, टू ब्रिंग गॉड्स लाइट टू अर्थ एंड मैन। तो वो कह रही है कि ये जो हम दोनों साथ मिले हैं, ये इसलिए नहीं कि हमारा बाहर का जीवन बहुत अच्छा। आप देखिए, अधिकांश परिवार, जोड़े, हस्बैंड वाइफ, 99.999% बाहर की तो छोड़ ही दीजिए, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, किस लिए वो जीवन चलाते हैं? इसीलिए कि उनकी संतान हो जाए, उनको पैसा हो, घर बनाएंगे, सुख होगा, सुविधा होगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो बच्चों के लिए जाएगा। 99.999%। और सावित्री हम लोगों को विवाह का सत्य समझा रही है। वो कहती है कि मानव, दो मनुष्य जो साथ आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि वो एक प्लेजर मल्टीप्लायर हो, जो आजकल एक थॉट है कि दोनों कमा रहे हैं तो हमारी इनकम ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा है तो हम और एंजॉय करेंगे लाइफ को। वो कहती नहीं, कहती है कि हम दोनों ओरिजिनली भगवान ने इस तरह से बनाया है कि हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस कॉमन काम के लिए जो हमें भगवान ने सौंपा है, जो भगवान की धरोहर है। मुझे लगता है अगर हम इतना भी केवल सीख लें सावित्री की कहानी से, कि हम लोग इस संसार में एंजॉय करने, प्लेजर, इसके लिए नहीं आए हैं। एक महत् कार्य है जो भगवान ने हमें सौंपा है, और इंडिविजुअली हमको वो करना चाहिए, और ग्रुप में भी वही कार्य होना चाहिए। और यदि हम परिवार की बात लें तो विवाह, और सावित्री को संतान भी होती है, तो ये सब कुछ वास्तव में हमको एक भेंट के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में देखना चाहिए कि हम इसके ओनर नहीं हैं। सावित्री ये नहीं कहती कि मैं ओन करती हूं सत्यवान को, वो कहती है कि एक कॉमन सूत्र है जिसके कारण एक प्रयोजन है, एक डिवाइन पर्पस है, एक डिवाइन मीनिंग है, जिसके लिए हम दोनों आए। और ये जीवन का इतना अकाट्य सत्य है कि जिस दिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं, उस दिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन हम ये सोचने लगते हैं कि हम इस अपनी पत्नी को, या पत्नी अपने पति को ओन करती है, जिस दिन माता पिता सोचते हैं कि हम बच्चे के ओनर हैं, तो ओनर का क्या मतलब होता है, अब तुम मेरी बात सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे, वहां समस्या शुरू होती है। और जिस दिन हम अपने को ट्रस्टी के रूप में देखते हैं कि जो भी चीजें हमारे जीवन में है, पति पत्नी, बच्चे, संपत्ति, घर इत्यादि, ये सब हमें ट्रस्टी के रूप में दिया गया है, और यदि हम इसका भगवान की सेवा के लिए, भगवान संसार में भगवान के प्रकाश पढ़ने के लिए इनका उपयोग करें, तो ये अद्भुत होगा, अति सुंदर होगा। और जिस दिन हम इसका किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए करेंगे, तो वहां समस्या शुरू हो जाएगी। और वास्तव में आज इतना सुंदर दिन है, यही तो शिक्षा है माँ की। आश्रम क्या है? आश्रम एक प्रकार का परिवार है, और मैं केवल आश्रम को भी सीमित रूप में नहीं देख रहा हूँ। 57 के बाद तो माँ ने कहा है, जो भी लोग हैं जो श्री अरविंद की स्टडीज से जुड़े हैं, जैसे आप सबका ग्रुप और भी कई ग्रुप हैं, ये सब परिवार है माता जी का। और ये जो बड़ा परिवार है माँ का, किस लिए है? तो वो इसलिए नहीं है कि चलो हम लोग मिल करके खूब पैसे कमाएंगे, हम लोग मिलकर खूब नाम कमाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जैसे आमतौर पर कम्युनिटीज बनती हैं। कम्युनिटी का होता है कि भैया हमारी कम्युनिटी है, एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे, जब कोई समस्या आएगी एक साथ खड़े होंगे। नहीं, वो तो कलेक्टिव ईगो है। लेकिन इसका प्रयोजन कुछ और है, उसका अपना स्थान है। इसका प्रयोजन है कि हम सब एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से सपोर्ट करेंगे, आध्यात्मिक समृद्धि को पृथ्वी पर लाने के लिए और उसके विस्तार के लिए, उसको जीवन में प्रकट करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो वो जो कलेक्टिव योग का रूप है, उसको हम देखते हैं कि जब सावित्री सत्यवान के कई बच्चे
ये कई जगहों पर, या उनको संपदा, तो वो उस सेंस में है, इसको हम बाहर से देख सकते हैं कि बाहरी संपदा इत्यादि वो तो है ही, लेकिन इसको साथ ही हम आंतरिक संपदा के रूप में कि सावित्री सत्यवान साथ में आते हैं इस संसार का कल्याण करने के लिए, और उस लिए सत्यवान के अमृतत्व की आवश्यकता है। कई बार हम लोग कहते हैं अरे सावित्री तो जीत गई थी, कई बार पत्र भी लिखते हैं लोग, मृत्यु से वापस ले आई थी सत्यवान को, तो हमारे पापा की डेथ हो गई या हमारे हस्बैंड की, हम भी क्यों नहीं ला सकते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि मंतव्य देखिए, मृत्यु ने ये सारे प्रलोभन सावित्री को दिए यम ने कि तुम किस लिए चाहती हो। अगर हम केवल इसलिए चाहेंगे कि इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन बड़ा अच्छा होगा, हम इमोशनली पेन्ड हैं किसी के चले जाने से और हमको फिर से वो वापस घर में खुशी लौट आएगी, ये नहीं है। उसके पीछे तो फिर एक अलग विधान चल रहा है, तो उसमें डेथ डज नॉट रिटर्न। लेकिन जिस दिन हम ये देखते हैं कि हम दोनों का एक ही प्रयोजन है, और उसमें इस जगत में या इस जगत के परे, मानव देह में या मानव देह के परे, हम एक दूसरे को और पूरे संसार को सुंदर बनाने के लिए, जो हम माँ श्री अरविंद के जीवन में और उनके अनुभवों में देखते हैं कि कैसे माँ बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं कि उनके जीवन का एक ही ध्येय है, टू फुलफिल। श्री अरविंद जो डिवाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो भी उनकी विल है उसको फुलफिल करना, ये इसी को हमारे यहाँ आइडियल रिलेशन देखा गया, जिसको कहा गया कि ईश्वरीय तत्व और उनकी शक्ति। मैरिज का ओरिजिनल मीनिंग देखिए, लेकिन ये संभव नहीं है अगर एक बंदा डावाडोल है, तो ये नहीं है इसका जो बाद में एक रॉन्ग सेंस निकला सावित्री की तरह। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी एक बात भी हुई थी, किसी ने निरोधा को, हम सब जानते हैं निरोधा से परिचय है, कैसे वो श्री अरविंद के स्क्राइब, उन्होंने सावित्री लिखी, तो मजाक मजाक में ऐसे ही उन्होंने कहा कि तू सावित्री है तो मैं तेरा सत्यवान हूं। तो उसने कहा, मजाक की बात है, एक बड़े सुंदर ह्यूमर की बात है, तो उस लेडी ने कहा ऐसा काला कलूटा सत्यवान, तो उन्होंने कहा हाँ, जैसी सावित्री वैसा सत्यवान। कहने का अर्थ ये था कि आम जीवन में ये चीज ऐसे नहीं है कि हम इसको मिस अप्लाई स्पिरिचुअल लाइफ, अरे सावित्री सत्यवान को जीत करके ले आई थी मृत्यु के, तो हम भी ले आएंगे। और फिर लोग प्रश्न, पहले जिसको कहते हैं ना इम्पॉसिबल प्रॉब्लम क्या होती है, जिसका वास्तव में हल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उचित ही नहीं है और वो इनवैलिड है। जैसे आप देखते हैं ना कंप्यूटर में आप कोई क्वेश्चन डालेंगे, कहता है इनवैलिड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इनवैलिड है। तो सावित्री की कहानी की भूमि अलग है। भूमि क्या है, वहां डिवाइन मदर इस संसार को दिव्य बनाने के लिए आई है, और अगर हम तैयार हैं उनके इस प्रयोजन में, इस डिवाइन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे कुछ भी कठिनाई हो, कितनी भी बाधाएं हो, यहां तक कि मृत्यु भी अगर सामने खड़ी हो, क्या हम तैयार हैं पूरी तरह उनको समर्पित करके इस डिवाइन प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए? तब सावित्री और सत्यवान का मिलन होता है। तो यहाँ हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सत्यवान हर वो व्यक्ति है, क्योंकि सत्यवान कौन है? ह्यूमन सोल इन इग्नोरेंस, डिवाइन ही है जो ये बन गए हैं। सत्यवान हर वो व्यक्ति है जो अपने अंदर सत्य को धारण किए है, लेकिन अज्ञान की पकड़ में है, मृत्यु के वश में है और नाना प्रकार की जंजीरों से जड़ा हुआ है। अब जब वो डिवाइन मदर से अपना एक विवाह संपन्न करता है, ये लगता होगा कि कैसे संभव है, लेकिन सच में डिवाइन मदर ने एक बात कही है, मिस्टिक मैरिज। कुछ ऐसे लोग थे, कई लोग हैं जिनको माँ एक विशेष अंगूठी देती थी पहनने के लिए, और माँ उसको कहती थी मिस्टिक मैरिज। मिस्टिक मैरिज क्या होती है? वही जो हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्रों में कि श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया जो नरकासुर के अधीन थी। वे सारी शक्तियां जो गिर गई थी, पतन हो गया था जिनसे वो विवाह करते हैं। तो मिस्टिक मैरिज क्या होती है? और ये ट्रेडिशन है, पुराने समय में भी ये ट्रेडिशन है। अगर आप सारे इsoteric क्रिश्चियनिटी में, अब नहीं, जो अब उसका जो पतन हो चुका है, तो उसमें अगर आप किसी से पूछोगे नन से कि तुम्हारे तो विवाह नहीं करती हैं, कहती है हमारा विवाह तो क्राइस्ट से हुआ है। तो ये इसका अर्थ ये होता है कि जब हम भगवान से ब्याह जाते हैं, जब हमारा विवाह उनसे होता है, तो विवाह क्या है? एक निम्न श्रेणी में हम देखते हैं केवल भौतिक जुड़ाव, जिससे बच्चे हों और फोर्स मल्टीप्लायर हो और हमारा घर परिवार बढ़े।
लेकिन वो तो एक आसुरी राक्षसी अंडरस्टैंडिंग है। विवाह का जो मूल अर्थ है ये है कि जब हम दो शक्तियां जो भगवान से जुड़ी हुई हैं, भगवान के लिए जी रही हैं, वो साथ में आती हैं। और इसका अल्टीमेट प्रयोजन है कि हम सबका विवाह, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जब हम डिवाइन से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जिसको विवाह कहते हैं, तो वो तो अद्भुत है, क्योंकि तब हम पूरी तरह उनके हो जाते हैं, उनके लिए जीते हैं, और उनके कर्म को करना यही हमारे जीवन का ध्येय होता है। एक कहानी है वृंदावन में, जब मीराबाई गई तो उनसे जो योगी थे उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया, कहा कि लोगों ने आके कहा कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने कहा कि स्त्री, मैंने तो सुना कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर एक मूल सत्य ये नहीं है कि वो ह्यूमन बॉडी में मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, क्योंकि हम सबके अंदर जो चैत्य सत्ता है उसको फेमिनाइन ही कहा गया है। आउट ऑफ द मिस्टिक केवन इन मैन्स हार्ट द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल। और हमारे पति कौन है? हमारे पति वही हैं जो साक्षात ईश्वर हैं, यहाँ पर डिवाइन मदर, दोनों एक ही हैं। और जब हमारा उनसे ऐसा अभिन्न संबंध हो जाता है, जो विवाह का मूल अर्थ है कि सभी प्लेन्स पर हम आपके हैं, हम भौतिक रूप से भी तुम्हारे हैं, हमारी प्राण की ऊर्जाएं तुम्हारी हैं, हमारी भावनाएं तुम्हारी हैं, हमारे मन के विचार तुम्हारे हैं, हमारी आत्मा की गति, अभिप्सा, सब कुछ तुम्हारी है। उसको कहा जाता है विवाह, जो सत्यवान सावित्री का। और ये सबके लिए ये अवेलेबल है। यही चीज अगर हम चाहें तो राधा की प्रार्थना क्या है? यही प्रार्थना है। जब माँ से किसी ने, माँ ने उसको ट्रांसलेट किया है, राधा की प्रार्थना को सही रूप दिया, और वहां पर माँ बताती हैं कि सब कुछ मेरा तुम्हारा है, मेरे खून की एक एक बूंद तुम्हारी है, मेरी एक एक सेल तुम्हारी है, आत्मा तुम्हारी है, एक एक विचार, भावनाएं, हार जीत सब तुम्हारी है। जिस दिन ये भाव, और इसी चीज को हम सत्यवान के अंदर देखते हैं कि जब सत्यवान सावित्री से मिलता है तो क्या कहता है? यही कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है, मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन केवल एक प्रार्थना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे घर में रहोगी? मेरे पास और कुछ देने को नहीं है, स्वयं को दे सकता हूं, और वह मैं तुम्हें पूरी तरह दे रहा हूं। और फिर सावित्री स्वीकार करती हैं, फिर वो सत्यवान को वरण करती हैं। और एक बार जब डिवाइन मदर वरण कर लेती हैं तो उसके बाद मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती, तभी होगी जब डिवाइन मदर का सैंक्शन होगा। तो ये कहानी है सावित्री सत्यवान की, मिस्टिक मैरिज की, उस विवाह की जो हम सबके जीवन में हो, जब हम सब डिवाइन से संबंध केवल जोड़े नहीं, लेकिन विवाहित हो जाएं भगवान से, एक हो जाएं उनके साथ, यूनियन डिवाइन को बिलवेड के रूप में, ये सर्वोच्च यूनियन का प्रतीक है। ये श्री अरविंद सिद्धांत ऑफ योग में भी बताते हैं कि जितने भी मानवीय संबंध है, माँ पिता इत्यादि, ये सब हैं भगवान के साथ, मित्र का संबंध, लेकिन सबसे बड़ा जो संबंध है भगवान के साथ, बिलवेड का संबंध है। बिलवेड कौन होता है? जो तुम्हारे अंतरंग विचार जानता है, जिससे तुम्हारा कुछ नहीं छिपा है, कोई तुम्हारी भौतिक गति, कोई आंतरिक गति, कुछ भी नहीं छिपा है। तो सावित्री उस संबंध को किस प्लेन पर ले जाती हैं कि यदि हम ऐसा संबंध जोड़ सकें डिवाइन मदर के साथ, जैसा सत्यवान ने जोड़ा, तो फिर हम जीवन को ना केवल निर्भय होकर जी सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा, ना केवल मृत्यु के दंश से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु आएगी जाएगी, शरीर जब तक रूपांतरित नहीं होता, लेकिन इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पूरे की पूरे हम, जैसे अंदर में जितनी प्रगति हुई है, मृत्यु के बाद भी, यानी भौतिक तत्व के टूटने के बाद भी, सब कुछ माँ के साथ रहेगा। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, एजेंडा में भी है और कई जगहों पर है, समय का अभाव है इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद भी जब हम आएंगे जीवन में बार बार, तो हम केवल और केवल श्री माँ की संतान के रूप में उनका कर्म करने के लिए हम आएंगे, जिसकी बात हम श्री अरविंद के दुर्गा स्तोत्र में देखते हैं, जहां वो कहते हैं कि माँ, जन्म से जन्म जन्म हम आते हैं तेरे ही व्रती होकर, तेरी संतान के रूप में, तेरे ही कर्म को करने के लिए। तो वास्तव में सावित्री पूरा एक योग है, हम कह सकते हैं कि समर्पण का योग है, प्रेम का योग है, जिसमें एक बार यदि हम किसी अंतर्दृष्टि से ये जान लेते हैं कि ये जो डिवाइन मदर हमारे सामने भौतिक रूप में खड़ी है, वास्तव में वो परमा माँ ही है। और यदि हम, क्योंकि अब परमा माँ को सब कुछ देना अपने ही अंदर कठिन होता है, और मानव देह धारण करने का एक प्रयोजन होता है भगवान का,
तो हम देह रूप में जब देते हैं तो केवल हम अंदर नहीं देते, बाहर भी देते हैं। श्री अरविंद एक जगह बताते हैं और माँ भी इसको कहती हैं कि जब हम प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, उसमें शरीर भी बो डाउन कर रहा है। मेडिटेशन करते हैं तो हम केवल अंदर में हमारा मन और एक पार्ट हमारा जुड़ रहा है। जब हम प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय जुड़ रहा है। जब हम कर्म करते हैं भगवान का तो हमारी प्राण की ऊर्जा जुड़ रही है। और जब हम भगवान के सामने उनको देखते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनके सामने पूरा नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये मिस्ट्री है भगवान के भौतिक रूप धारण करने की, जो सावित्री और सत्यवान के माध्यम से केवल वो एक संकेत नहीं है, वो एक सत्य भी है। यही डिवाइन मदर, और हम ये कह सकते हैं कि श्री अरविंद का ही वो पुरातन काल में उनका एक जन्म है। और इस बार वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने प्रारंभ किया है सावित्री सत्यवान के रूप में, मृत्यु के चंगुल से पूरी तरह मुक्ति, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीशन की तरफ आ गया है। सावित्री सत्यवान के जीवन में वो मुक्ति इस लेवल तक जाती है, अंत में सत्यवान 400 साल के बाद ही लीव्स द बॉडी एंड सावित्री आल्सो लीव्स द बॉडी। लेकिन वो भी एक प्रकार की मृत्यु के क्लच में नहीं है, यानी इच्छा मृत्यु है। अपना पूरा कर्तव्य करने के बाद मिशन पूरा करके वो मृत्यु है, यानी शरीर जा रहा है लेकिन अंदर की चेतना पूरी तरह अपना जो काम के लिए आई थी वो करके जा रही है। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट लेवल पर है, जिसकी बात श्री अरविंद माता जी करते हैं, वो सावित्री के अंत में हम देखते हैं बुक 11 में, जहां पूरा वरदान मिलता है सावित्री को कि एक दिन ऐसा आएगा जब इवन द बॉडी शेल रिमेंबर गॉड, ये भौतिक तत्व भी मुक्त हो जाएगा अचित अंधकार के पास से। और ये भी एक ल्यूमिनस बॉडी जिसकी बात उन्होंने कही है। और वो जो सावित्री सत्यवान की कहानी प्रारंभ हुई है, पौराणिक कथा है, वेदों में कही गई कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है ये कथा। तो वैदिक काल में जो प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है, वो प्रोजेक्ट अब अपने कंप्लीशन पर इस नए सतयुग में होगा कि वह मुक्ति मृत्यु से, अचित अंधकार अज्ञान से जो उस समय प्रारंभ होती है, अब वो अंत में जाकर देह को भी सब प्रकार के अचित अज्ञान अंधकार से मुक्त करेगी और देह भी उस अमृत तत्व को चखेगा जिसको हमारी आत्मा जानती है और चखती है। हमारा मन भी जान सकता है, चख सकता है उस अमृत तत्व को, हमारा हृदय उससे पोषित हो सकता है, उसके माधुर्य को पी सकता है, और हमारा प्राण उससे सबल हो सकता है। किंतु देह भी एक दिन आने वाले समय में उसी अमृत तत्व को चखेगा और उससे पोषित होकर ये मानव देह भी दिव्य देह में रूपांतरित होगा। जय मां, जय मां, जय मां।